শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলায় আছি। অষ্টম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 25 থেকে শুভারম্ভ করব। चैतन्य चरितामृतम आदि 8.25 onwards। 25 नंबर श्लोक कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, सीसी आदि 8.25। मुझे बच्चे सोए इसलिए बत्ती नहीं जला रहे, उठ जाएंगे सब। ये बोलना जरूरी था क्या? ओके। तदा स्मशारं हृदयं बतेदाम। कोई है? तदाश्मसारं हृदयं बतेदं यद्ग्रीयमाणायर हरिनाम देहे यद्गृह्यमाणे हरिनाम देहे ना विक्रियेताथ यदा विकारो न विगृहीताद् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्ष। नेत्रे जलं गाद्रुहेषु हर्ष। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का है। यहाँ लिखा गया है अनुवाद। হরিনাম গ্রহণ করলেও যাদের হৃদয়ে বিকার, নেত্রে জল এবং গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তার হৃদয় লোহার মতোই কঠিন। नाम प्रभुर चरणेर अपराधेर फलेई यही अवस्था है। तो जिन जिन का ऐसा नहीं होता है, ये है किस लिए? क्योंकि हम लोग हरिनाम प्रभु के चरणों में अपराध कर रहे हैं, यानी 10 नाम अपराध में से कुछ अपराध कर रहे होंगे, उसीलिए ये सब नहीं होता। क्या क्या नहीं होता है? आंख में आंसू नहीं आता है, रोमांच नहीं होता शरीर में। तात्पर्य শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটির ভাষ্যে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে অনেক সময় মহাভাগবতদের রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু আদি অপ্রাকৃত প্রেমের লক্ষণ প্রকাশ করতে দেখা যায় না, অথচ কখনো কখনো কনিষ্ঠ অধিকারীদের কৃত্রিম ভাবে তা প্রকাশিত করতে দেখা যায়। তার অর্থ এই নয় যে কনিষ্ঠ অধিকারী মহাভাগবত থেকে অধিক উন্নত। समझ में आया सबको? उल्टा चीज बता रहे हैं अनुवाद से, देख लीजिए। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে হৃদয়ে যে প্রকৃতই পরিবর্তন হয়, তার পরীক্ষা হচ্ছে জড় সুখ ভোগের প্রতি বিরক্ত। दिस इज द एसिड टेस्ट। कैसे पता चलेगा? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि जरा आसक्ति से विरक्त होना चाहिए। उसका मतलब हरे कृष्ण महामंत्र इफेक्ट हो रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तনের ফলে হৃদয়ে যে প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, তার পরীক্ষা অ্যাসিড টেস্ট হচ্ছে জড়সুখ ভোগের প্রতি বিরক্তি। সেটাই হচ্ছে প্রকৃত পরিবর্তন। ভক্তি পরে সানুভবে বিরক্তির ভগবত ভক্তির উদয় হলে অন্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি আপনা থেকেই বিরক্তি আসে। যদিও কখনো কখনো দেখা যায় যে কোনো কনিষ্ঠ অধিকারী হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে কৃত্রিম ভাবে অশ্রু বর্ষণ করছে, অথচ জড় বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণভাবে আসক্ত, তবে বুঝতে হবে যে তার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়নি। প্রকৃত কার্যকলাপের মাধ্যমেই এই পরিবর্তন प्रकाश पावे। हरि बोल। एक्सेलेंट। प्राकृत कार्यकलाप से ही पता चलेगा कि व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। अभी भी अगर भौतिक चीजों में उनका आसक्त है, इसका मतलब हरे कृष्ण महामंत्र कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा। वो रोने धोने से या रोमांच दिखाने से कुछ नहीं होगा। काम से ही पता चलेगा, उसका कार्य से पता चलेगा कि व्यक्ति का आसक्ति है या नहीं है हरिनाम के प्रति। किसी का कोई प्रश्न है? परफेक्ट एसिड टेस्ट है ना।
हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितना प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल, इसीलिए सिंह गुरु बोला जाए। 26 নম্বর শ্লোক। এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব পাপনাশ, एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, প্রেমেরও কারণ ভক্তি করে না প্রকাশ। प्रेमेरे कारण भक्ति करे न प्रकाश। एक कृष्ण नाम से सर्व पाप नाश कर देता है, लेकिन उस स्तर से हरिनाम होना चाहिए। নিরপরাধে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, তার ফলে ভগবত ভক্তি যা প্রেমের কারণ তা প্রকাশিত হয়। तो एक चीज में दो चीज हो जाता है। अगर निरपराध से कोई हरिनाम जप किया, पाप खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ कृष्ण प्रेम स्फूर्ति होगा। क्लियर? তাৎপর্য, পাপ মুক্ত না হলে ভগবত ভক্তি লাভ করা যায় না। সেই সম্বন্ধে ভাগবত গীতায় বলা হয়েছে, যে সাং অন্তর্গতং পাপং জনানাং পুণ্য কর্মণাং তে দ্বন্দ্ব মোহ নির্মুক্ত ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রত। যে সমস্ত মানুষ পূর্বজন্মে ও এই জন্মে পুণ্য কর্ম করেছেন, যারা সর্বতভাবে পাপ মুক্ত হয়েছেন এবং যারা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তারাই নিষ্ঠা সহকারে আমার ভজনা করেন। যে মানুষ সর্বতভাবে পাপ মুক্ত হয়েছেন, তিনি দ্বন্দ্ব মোহ থেকে মুক্ত হয়ে অবিচলিতভাবে ভগবত ভক্তি পরায়ণ হতে পারেন। এই কলিযুগে যদিও অধিকাংশ মানুষই পাপী, তবুও কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে তার পাপ মুক্ত হতে পারেন। এক কৃষ্ণ নাম, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তনের ফলেই তা সম্ভব। সেই সম্বন্ধে ভাগবত বলা হয়েছে, কীর্তন দেব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গ পরম ব্রজেত। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পথে চলতেন, তখন তিনি কীর্তন করতেন, কৃষ্ণ 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 হে কৃষ্ণ 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 হে কৃষ্ণ 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 রক্ষ মাম কৃষ্ণ 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 পাহি মাম রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম। কেউ যদি নিরন্তর কৃষ্ণ নাম কীর্তন করেন, তাহলে ক্রমশ তিনি সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবেন। যদি তিনি নিরপরাধে নাম করেন এবং নাম বলে আর পাপ আচরণ না করেন, এভাবেই হৃদয় নির্মল হয় এবং ভগবত ভক্তির প্রভাবে শুদ্ধ ভগবত প্রেমে প্রকাশ হয়। পাপ মুক্ত হয়ে নিরপরাধে কেবলমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে জীবন পবিত্র হয়ে ওঠে এবং তখন পঞ্চম পুরুষার্থ বা ভগবত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। प्रेमा कुमार्थ महान। हरे कृष्ण। सबको समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचवी अवस्था प्राप्त करता है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, पंचम पुरुषार्थ यानी उसी के बाद दिया हुआ है, বা ভগবত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। माने भगवत प्रेम के स्तर पे यानी पंचम पुरुषार्थ के स्तर पे लोग उठ सकता है। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई सवाल? क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। प्रेमेर उदय হয় প্রেমের বিকার, प्रेमेर उदय होय प्रेमेर विकार, ছেদকম্প পুলকাদি গদা গদা শ্রুধার। स्वेद कप पुलकादि गदा गदा सुधार। যখন ভগবত প্রেমের উদয় হয়, তখন শ্বেত কম্প পুলক অশ্রু সরভঙ্গ আদি প্রেমের বিকারগুলি প্রকাশ হয়। ठीक है, ये जो विकार आता है कृष्ण प्रेम से आता है, प्रेम स्तर पे पहुंच जाने से ही आता है। তাৎপর্য, যখন ভগবত প্রেমের উদয় হয়, তখন দেহের এই সমস্ত বিকারগুলি আপনা থেকেই প্রকাশ পায়। কৃত্রিম ভাবে সেইগুলি অনুকরণ করা উচিত নয়। আমাদের রোগ হচ্ছে জড় বিষয় বাসনা। আমরা পারমার্থ পথে অগ্রসর হওয়ার সময় নাম এবং যশের আকাঙ্ক্ষা করি,
এই রোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে। শুদ্ধ ভক্ত অন্য অভিলাষতা শূন্য, সব রকম জড় অভিলাষ থেকে মুক্ত। উত্তম ভক্তের দেহে নানা রকম বিকার প্রকাশিত হতে দেখা যায়, যা হচ্ছে প্রেমানন্দের লক্ষণ। हाँ बोलिए दिलीप प्रभु। हरे कृष्ण। अन्य अभिलाषा हिसा शून्य में किस कहाँ पर है ये श्लोक? ये भक्ति के सामने सिंधु का श्लोक है, रूप गोस्वामी द्वारा। देखिए क्या लिखा है, कितना सुंदर। ये আমরা যখন পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়ার সময় नाम एवं যশের আকাঙ্ক্ষা করি, हाँ है ना, सत्य बात है ना। ये सबसे मुक्त होना चाहिए पारमार्थिक पथे अग्रसर होने समय। सोचिए, ऐसे तो भौतिक जीवन में हम लोग नाम और यश का आकांक्षा करते ही हैं, लेकिन जब भक्ति जीवन में आते हैं, इस्कॉन में भी आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग आगे बढ़ते हैं भक्ति में, उस समय भी हम लोग का ये दो चीज आशा रहता है, नाम एवं यश का, कि हमारा गुण कीर्तन हो और सब हमारे को प्रशंसा करे, और तो ये सुनने का अभिलाष रहता है। तब हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, तो फिर ये मतलब कैसे जाएगा? क्या सर्विस ही करते रहे? मतलब कैसे? ये अहंकार इतना प्रबल होता है कि वो विनम्र भाव ही नहीं देता। काम और जोश मन रिकॉग्निशन मांगते हैं ना, ऑलवेज बॉडी, ऑलवेज सोल लुक्स फॉर रिकॉग्निशन, कि हमारा रिकॉग्नाइज हो। एवरीबॉडी शुड रिकॉग्नाइज माय सर्विसेज। माने हमारा सर्विसेज का रिकॉग्निशन हो। रिकॉग्निशन कैसे कैसे रिकॉग्निशन होता है? रिकॉग्निशन किस तरह का होता है कि हमारा सर्विस के बारे में बोला जाए कि फलाना फलाना व्यक्ति ऐसे सब ने किया, फिर और क्या, फलाना फलाना व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाए, फलाना फलाना व्यक्ति को, ये तो होता है ना रिकॉग्निशन। ये जो लिखा है, আমাদের পরমার্থ পথের অগ্রসর হওয়ার সময়ও নাম এবং যশের আকাঙ্ক্ষা করি। we desire, we hanker for being नाम एवं যশ। और किस तरह से मन आकांक्षा करता है बताइए सब। हाउ वी क्रेव पारमार्थिक पथ है। यहाँ स्पिरिचुअल रास्ता का बात बता रहे हैं। शेयर कीजिए, आप लोग का भी आइडिया शेयर कीजिए। यस पंकज प्रभु। और यस रिकॉग्निशन का बोलिए प्रभु। ओके, तो बाकी लोग बोलिए। यस इंद्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, उस ये जो बताया कि रिकॉग्निशन उससे भी ज्यादा हमको लगता प्रभावित करता है कि why others are getting but I am not getting। Why others are getting but I am not getting। दूसरों को मिलना वो ज्यादा प्रभावित करता है। एक्चुअली यहाँ लिखा है আমাদের পরমার্থের পথে অগ্রসর হওয়ার সময়ও नाम एवं যশের आकांक्षा करी। हाँ उसमें भी वो भी आएगा जो आप बता रहे। Why others are getting, why I am not getting। Yes, very good। Yes इंद्राणी माता जी। Yes, that is a very good angle। वो एंगल तो सोचा ही नहीं। Yes। সব নাম একজনই কামাতে চায়, আর মানে দায়িত্বও দেবে না, কাউকে করতেও দেবে না, আবার এরকমও হয়। সবটাই আমিই করছি, আমি নাম কিনছি। ये भी एक अच्छा एंगल है, सब मैं ही करूंगा। दूसरा, अगर शेयरिंग, अगर सेवा शेयरिंग होगा तो सबका हरिबोल होगा। वेरी गुड पॉइंट। रादर अगर मैं ही सब कुछ कर लूं तो फिर मेरा ही हरिबोल होगा, ऐसे भी हो सकता है। यस, तो ये सब देखिए, हालांकि सब स्पिरिचुअल रास्ते का बात किया जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी का बात किया जा रहा है, कोई भौतिक जर्नी का बात नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में भी ये सब होता है। तो इसका उपाय क्या है? क्या इसका उपाय है कि सेवा ही ना करें? ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। हमको लग रहा है सब सहमत है, उसीलिए कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक बोले। हाँ ठीक बोले ना प्रभु। প্রভুজি, যে কোনো বড় ইনস্টিটিউশন চালাতে গেলে সবারই সহযোগিতা দরকার হয়। সেখানে যদি আমি না চান্স দিই কাউকে, আমিই সব করব, সেটা তো হয় না। करेक्ट। तो सबको लेकर चलना है, सबका प्रगति, सबका अपना लाइफ है। और ऐसे कि चांस के लिए वेट करना चाहिए कि लीडर कब चांस देंगे तभी हम करेंगे। लीडर कब चांस देंगे तभी हम करेंगे।
ऐसा क्या है क्या इस्कॉन में ऐसे सूची हालांकि है अथॉरिटी का परमिशन लेना चाहिए एक्सेट्रा, बट अथॉरिटी को भी अप्रोच करना चाहिए। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये करूँ, मैं क्यों करूँ, मैं ये ले लो, ऐसे करके पूछना चाहिए। दिस इज हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट, दिस इज हाउ आई वांट टू कंट्रीब्यूट। दो चीज हो सकता है, एक तो हम लोग का स्किल्स मालूम है, हमको ये चीज आता है, तो ये चीज मैं कर सकता हूँ। दूसरा मालूम नहीं क्या स्किल्स है, लेकिन हृदय से कभी कभी पुकार आता है कि कर लो, थोड़ा प्रसाद सेवा कर लो, थोड़ा सर्विस कर लो, इसमें क्या ज्यादा टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं है, जाकर थोड़ा बाल्टी लेके प्रसाद सर्विस कर दो। या पंकज को हरे कृष्णा प्रभु जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेवा में मल्टीपल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना चाहिए, कभी नहीं भी करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा लोगों का मत होने से वो सेवा ठीक से हो नहीं पाता है। उसके लिए हो सकता है कि जो सेवा का इंचार्ज है वो लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं भी ले। वो भी है, उससे 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 भी होता है कि कुछ ऑफेंस भी होता है, कुछ मतलब ये भी लगता है कि हो सकता है, ये भी एक एंगल है। यस। तो ये सब हम लोग को देखना है। ये इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग भी देखेंगे कि पारमार्थिक पथ है, स्पिरिचुअल रास्ते में क्या हमारे नाम या जश का हमारे हृदय में रहता है। द नीड फॉर रिकग्निशन, द नीड फॉर एप्रिसिएशन। तो हम लोग का आचार्य का देखना है कि कैसे किस तरह हम लोग के आचार्य ग्रंथ पे ग्रंथ लिखा, कितना शास्त्र का लिखा, कितना सेवा किया भगवान का। और महाप्रभु का आदेश लेकर कितना एकदम निस्वार्थ तो नहीं बोलेंगे, निस्वार्थ बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक भक्त का स्वार्थ तो रहता है। भक्ति में रहने का स्वार्थ है कि सच्चिदानंद में रहता है, व्यक्ति बहुत आनंद उपभोग करता है। व्हेन पर्सन इज नाइसली एस्टेब्लिश्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ, सांद्रानंद आता है ना वो श्लोक में, क्लेशाग्नि सुबदा मोक्षा लघुता कृत दुर्लभ सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी सच्चा। सोचिए कितना सुंदर श्लोक है, श्री कृष्ण आकर्षणी सच्चा। भगवान श्री कृष्ण जो सर्व आकर्षक है, कृष्ण शब्द का आकर्षण से, सर्व आकर्षक से है ना मीनिंग। जो सर्व आकर्षक है उनको क्या आकर्षण करता है? शुद्ध भक्ति। जो सर्व आकर्षक है गोलोक वृंदावन में, ऊपर से वो क्या दिखता है? कौन शुद्ध भक्ति कर रहा है। वो हरिपाल जी का कहानी आता है ना इसमें, ऊपर से दिखता है हरिपाल जी को फॉलो करता है कि कितना सुंदर वैष्णव सेवा कर रहा है। हरि बोल। यस केशव जगत प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि सेवा में रोटेशन होना चाहिए, जैसे कि एक ही सेवा एक ही पर्सन को वो करने से फिर दूसरा भी भक्त सोचता है कि अरे वो भी सेवा हमको क्यों नहीं मिल रहा है। जैसे एक होता है ना रोटेशन की, कभी गुरु सेवा एक जन कर रहा है तो एक ही जन को दिया जा रहा है, तो दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, तब सभी भक्तों में वो भावना नहीं आएगा कि हम भी वो किए। तो ये सब भी होना चाहिए। मौका मिले पता नहीं चलता ना कभी। सही है, सबको मौका मिलना चाहिए, सब मौके के लिए बोलना भी चाहिए। अभी हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि मुकुटमणि माता जी को अच्छा ग्राफिक्स आता है? बोलिए कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो सेवा देने के बाद ही पता चलेगा प्रभु। अरे कैसे पता नहीं चलेगा, इतना लोग है तो आई डोंट नो ना। कोई नहीं बोल सकता है ना प्रभु कि हमको वो सेवा चाहिए, तो बोलना पड़ेगा। वो फिर सामने वाले इतना बिजी है, जैसे अभी कोई सेवा करनी पड़ता है तो फिर वो कंटिन्यू एक ही जन को दिया जाता है कि रोटेशन में होना चाहिए, उससे सारे भक्त इन्वॉल्व होंगे सेवा में। ये टॉपिक नहीं है, हालांकि ये टॉपिक नहीं है। एनीवेज यस, पर्सनल एजेंडा। यस, वेदगामिनी राधारानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, बोलने से प्रभु यही बोला जाता है कि नहीं आपसे नहीं होगा। आपसे नहीं होगा तो शायद अच्छा ऐसे ही बोला जाता है क्या? आपसे नहीं होगा? हाँ प्रभु जी ऐसे बोलते हैं। अच्छा, वो चाहते हैं कि हम ही करें सारा सेवा, सामने वालों को भी तो देना चाहिए ना प्रभु जी, सारी सेवा नहीं मिलती है। अच्छा, अभी लग रहा है सब ये टॉपिक में सब अपना एजेंडा लेके आए। ओके, और क्या दिलीप प्रभु? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो यही फंस जाएंगे। हाँ बोलिए। हाँ हो गया आंसर आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, सब यही सब पकड़ के बैठेगा। ওকে, তবে জনসাধারণের কাছ থেকে সত্তা নাম কেনার জন্য তাদের
অনুকরণ করা উচিত নয়। উত্তম ভক্তের দেহে নানা রকম বিকার প্রকাশিত হতে দেখা যায়, যা হচ্ছে প্রেমানন্দের লক্ষণ। তবে জনসাধারণের কাছ থেকে সস্তা নাম কেনার জন্য তাদের অনুকরণ করা উচিত নয়। तो समझ में आ रहा है कि शुद्ध भक्त का कोई अनुकरण करे, रो रहा है, हालांकि व्यक्ति इतना भोगी है, एकदम जरे आसक्त भक्त व्यक्ति है, लेकिन ऐसा उत्तम भक्त का नाटक कर रहा है। तो वही तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला ना, एसिड टेस्ट क्या है? देखिए 25 नंबर का तात्पर्य का लास्ट सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इतना श्रेष्ठ भक्त है तो आप जरा आसक्ति में कैसे भोगा हुआ है। প্রকৃত কার্যকলাপের মধ্যেই এই পরিবর্তন প্রকাশ পাবে। कि व्यक्ति भौतिक चीजों से अच्छे से फंसे हुए हैं, फंसा के रखे अपने आप को, लेकिन भजन कीर्तन के सामने, सबके सामने अगर ये रोमांच, कंप, अश्रु, शुतरंग ये सब हो रहा है, अष्टसात्विक विकार हो रहा है, इसका मतलब वो ढोंग कर रहा है। ये मैचिंग नहीं है, परफेक्ट एकदम सिंगल गुरु। यस मनीषा माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, তাহলে মানে ভেতর থেকে যদি না আসে তাহলে কি করে রোমাঞ্চ, কান্না কি করে আসবে, ওটা কি করে নাটক হবে? অনেক অনেক নতুন লোকেরও আসতে পারে, বাট এটাকে কৃষ্ণ প্রেমের অষ্টসাত্ত্বিক বিকার বলতে গ্রহণ করবো না। ধরুন একটা কোনো, অনেক লোকে আমরা দেখি মায়াপুরে প্রথমবার গেছে, আপনারা তো দেখেছেন, ভগবান রাধা মাধব অষ্টসখীকে দেখে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে, হয় না এরকম? হ্যাঁ হলো, কিন্তু সেটা তো ভেতর থেকে আসবে, মানে কান্নার রোমাঞ্চটা তো কেউ দেখাতে পারবে না, ওটা তো দেখানো। হ্যাঁ না, আসতে দেখা হতে পারে, এগুলো তো বিকার, অষ্টসাত্ত্বিক বিকার, শরীরের বিকার, কান্না, রোমাঞ্চ, এগুলো কৃষ্ণ প্রেমের বিকার বলা হয়েছে। মানে যে কৃষ্ণ প্রেমের স্তরে পৌঁছে গেছে তার এরকম শারীরিক বিকার হতে পারে। মহাপ্রভুরও হয়েছে না, গম্ভীরায় হতো তো, রোমাঞ্চ, কম্পন এগুলো হতো, অষ্টসাত্ত্বিক বিকার, আরো অনেক কিছু আছে, পুলকাশ্রু এগুলো হতো, গদ স্বর, মূর্ছে, শরীর মূর্ছিত হয়ে जाना, ये सब। किंतु एगलो तो ओनर हो तो कृष्ण प्रेम स्तरे पहुंचे, किंतु एक नया व्यक्ति का भी हो ही सकता है भगवान को देखकर, लेकिन इसको हो सकता है, फाइन, दैट इज नेचुरल आल्सो। बोल सकता है कि सचमुच राधा माधव को देखकर आंसू आ गए, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि वो व्यक्ति कृष्ण प्रेम के स्तर में पहुंच गया है। यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलना चाह रहे हैं। ओके। তবে জনসাধারণের কাছ থেকে সস্তা নাম কেনার জন্য তাদের অনুকরণ করা উচিত নয়। কেউ যদি যথার্থই উত্তম স্তরে অধিষ্ঠিত হন তখন আপনা থেকেই এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাবে। हरि बोल। वो है नेचुरल। एक होता है, देखिए, एक होता है आम को इंजेक्शन मार के येलो करना, माना आम है एकदम कच्चा आम, लेकिन उसको इंजेक्शन मार के येलो कर देना। और एक है कि आम अपने आप कच्चा से आस्ते आस्ते समय के अनुसार येलो हो जाए, परिपक्व हो जाए, आर्टिफिशियली और ন্যাচারালি। কেউ যদি যথার্থই উত্তম স্তরে অধিষ্ঠিত হন তখন আপনা থেকেই এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাবে, সেইগুলি অনুকরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। आम को अगर छोड़ दीजिएगा तो अपने आप ही पेड़ के साथ युक्त रहने के कारण वो येलो हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। इसीलिए व्हाट इज द सीक्रेट? द सीक्रेट इज टू बी अटैच्ड टू द ट्री। ये गुरु, हरि गुरु वैष्णव के संगत, यही सीक्रेट है। इसमें अगर जुड़े हुए रहिएगा तो ऑटोमेटिक एक दिन ये स्तर पे पहुंच जाइएगा, ऑटोमेटिक एक दिन आम येलो हो जाएगा, वो नेचुरल येलो होगा, वो मीठा, वो अच्छा लगेगा खाने में, भगवान को वो ऑफर कर सकते हैं। और कच्चा आम को इंजेक्शन मार के आर्टिफिशियली अगर वो भगवान को दीजिएगा, भगवान जैसे देख देगा, क्या अंदर पूरा एकदम कच्चा है ना। वंडरफुल। 28 नंबर श्लोक। অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন, अनायासे भय भय कृष्ण सेवन, এক কৃষ্ণ নামের ফলে পাই এত ধন, एक कृष्ण नामेर फले पाई तो धन। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে পারমার্থিক জীবনে প্রভূত উন্নতি হয় এবং তার ফলে ভববন্ধন মোচন হয় এবং কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়।
এই কৃষ্ণ নামের এতই বল যে এক কৃষ্ণ নামের ফলে এই সমস্ত চিন্ময় সম্পদ লাভ করা যায়। किंतु वो एक कृष्ण नाम 10 नाम अपराध रहित होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कोई बोलेगा हम तो इतना साल से जप कर रहे हैं, कुछ ही नहीं हो रहा है ये सब लक्षण। तो आस्ते आस्ते जप तो हो रहा है, लेकिन नामाभास में हो रहा है, शायद नाम अपराध से हो रहा है जप, नामाभास से जप हो रहा है। और सबसे ऊपर वाला स्टेज क्या है? कृष्ण प्रेम। हेनो कृष्ण नाम जोदी लय बहुबार, हेनो कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु यदि प्रेम नहे नहे अश्रुधार, तबु यदि प्रेमे नहे नहे अश्रुधार, तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, तभी जानी अपराध ताहते प्रचुर। कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुर, कृष्ण नाम विजेता है ना करे अंकुर। ऐसे विदिता बने। प्रभु जी, जो ये नाम अपराध होता है नाम जप के समय, तो वो जब हम लोग जप करते हैं उस समय जो अपराध होता है उसको अपराध बोलते हैं, कि जो हम लोग भक्ति जीवन में करते हुए जो कुछ अपराध करते हैं उसको नाम अपराध बोलते हैं? देखिए, किसको बोलते हैं? अच्छा प्रश्न है। नाम अपराध में वेदगामिनी रत्नारायणी माता जी बहुत कुछ ऐसे अपराध है जो जब लाइक सोचिए, पहला अपराध क्या है कि जो भक्त का प्रचार कर रहे हैं उनके चरणों में अपराध निंदा करना। तो कोई बोल सकता है ये तो जब से क्या रिलेटेड है सर, ये चैंटिंग से क्या रिलेटेड है, ऐसा बोल सकता है ना कोई। लेकिन अगर कोई इसको इस तरह से लेना है, कोई अगर सोचिए कोई जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है और उसका निंदा कर रहा है, हाँ, तो और जब भी कर रहा है तो ये नाम अपराध है। इसको इस एंगल से लीजिए। हाँ, तो नहीं करे क्या? नहीं करिए, करते करते आस्ते आस्ते ये सब अपराध खत्म हो जाएगा। तो वो मतलब हम लोग जो डेली लाइफ में जो जीते हैं भक्ति में या अपने घर पे पर्सनल लाइफ में, तो उसमें अपराध नहीं करना है। पर्सनल लाइफ ये स्पिरिचुअल से ही जुड़े हुए हैं। देखिए 10 नाम अपराध जो है ये स्पिरिचुअल से ही जुड़े हुए हैं। जैसे पहला वाला जो भक्त का निंदा करना, दूसरा शिव ब्रह्मा आदि को भगवान के स्तर के समझना या उनसे स्वतंत्र समझना, ये भी तो भक्ति से जुड़ा हुआ है ना। कोई सोचिए कृष्ण का आराधना कर रहा है और शिव जी का भी आराधना कर रहा है, तो ये तो गलत है। तो क्योंकि आप दोनों को कर रहे हैं, माने दोनों को एक ही लेवल पे देख रहे हैं, या दोनों को नहीं प्रभु मैं कृष्ण को ही मानता हूं, तो फिर आप इनको क्यों कर रहे हैं? तुरंत सवाल आ जाएगा, क्या फिर आप इनको क्यों कर रहे हैं, ये देवता को क्यों कर रहे हैं? तो ये भी आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। प्रभु जी, तो अगर हम लोग पर्सनल लाइफ में इस तरह का अपराध करते रहेंगे, जैसे बैक बाइटिंग हुआ या फिर किसी का निंदा इस तरह का, तो वो आदत तो फिर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में भी तो दिखेगा। एकदम उससे भी जुड़ा हुआ है। पर्सनल लाइफ में भी तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एकदम उसी से आएगा तो आस्ते आस्ते। हाँ, लेकिन भक्ति के स्तर, भजन कीर्तन के स्तर पे आने से भी यहाँ वो सब रह जाता है, फिर वही चीज हम लोग भक्त के प्रति करने लग जाते हैं। तो ये सब का कैसे उपाय है? उपाय एक ही है, नाम जप करते रहिए। नाम से ही नाम अपराध खंडन होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नाम जप करते करते ही नाम अपराध खंडन होगा। और अच्छा से नाम जप करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बहुत लोगों का उच्चारण ठीक नहीं होता है, वो सुनना चाहिए, और किसी का अगर गलत सुन रहे हैं तो उसको बोलना चाहिए, भैया आपका नंबर जब ठीक नहीं हो रहा है। एनीवेज, वो अलग टॉपिक हो गया कि ठीक से उच्चारण नहीं होता है। और एक बार अगर कुछ बैठ गया ना, एक बार अगर कुछ जप में गलत उच्चारण, गलत प्रोनाउंसिएशन बैठ गया, उसको हटाना, उसको रिपेयर करना असंभव है। मंगलाचरण में अगर कोई प्रणाम मंत्र गलत उच्चारण सीख लिया कोई व्यक्ति, वेरी डिफिकल्ट टू करेक्ट दैट, वेरी डिफिकल्ट। ओके, यस, हाँ बोलুন বঙ্কিম প্রভু। আরে যিশু হরিবল, দণ্ডবত প্রণাম। ধন্যবাদ। আমি যখন ঘরে জব করি খুব একটা উচ্চারণে মানে ক্লিয়ার হয় না,
একটু প্রবলেম হয়, আমার মনে হয় যে আমি ঠিক উচ্চারণ হচ্ছে না। যখন এই মন্দিরে বসে জপ করি তখন একবারে মানে প্রমিনেন্ট এবং পরিষ্কার হয়ে জপ করি। এটা পাওয়ার কারণটা কি? আমি মতিঝিলে জব করতে আছি, আমি এখনো এই মাত্র বেরোলাম। बोलना है कि मोती झील में अच्छा से जप होता है, घर में अच्छा जप नहीं होता है। इससे क्या संकेत मिलता है, किनको क्या करना चाहिए? फुल टाइम क्या क्या आप लोग का क्या आइडिया है, क्या क्या इनका इससे क्या संकेत मिल रहा है? हाँ बोलिए माता जी। मंदिर में तो 2-4 भक्त सुनते होंगे ना, तो प्रभु जी सोचते थोड़ा अच्छा से बोले। नहीं मैंने इसका इसका संकेत क्या, मैंने क्या हिंट मिल रहा है इससे, बताइए मनीषा माता जी। मतलब ওনাকে সারা জীবন মন্দিরেই থাকতে হবে, তাহলে ওটা ঠিক করে করতে পারবে। ঠিক আছে বঙ্কিম প্রভু। हरि वो हरि बोल, ठीक আছে চলিए। হ্যাঁ, এবার অনুবাদ। বারংবার এই কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি কৃষ্ণ প্রেমের উদয় না হয় এবং চোখ থেকে আনন্দ অশ্রু ঝরে না পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে যে তার প্রচুর অপরাধ রয়েছে, তাই কৃষ্ণ নামের বীজ अंकुरित হচ্ছে ना। हम लोग का ऐसे स्टेज है ना, हम लोग क्या नाम जप करते करते रोते हैं, हम लोग का ऐसे कुछ होता नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि बहुत जन्म जन्म का हम लोग का अपराध स्टॉक किया हुआ है, उसीलिए नहीं हो रहा है। नहीं तो एक नाम से ही आ जाता है अगर हम कृष्ण प्रेम के स्तर पे रहते तो। तात्पर्य কেউ যদি অপরাধ যুক্ত হয়ে কৃষ্ণ নাম করেন তাহলে ঈপ্সিত ফল লাভ হয় না। তাই ৪৪ শ্লোকে বর্ণিত অপরাধগুলি খুব সাবধানতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতে হবে। প্রভুজি এখানে 14 নম্বর শ্লোক কোনটা? গীতার বলছে ৪৪ শ্লোকে বর্ণিত অপরাধগুলি খুব সাধারণত মানে ওই যে না 10 নম্বর অপরাধ এখনই হলো না 24 নম্বর শ্লোকে 24 আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ মানে প্রভুপাদ দেখুন तात्पर्य लिखा है 10 নম্বর অপরাধ মানে এগুলো আমাদের খুব এড়িয়ে চলতে হবে। हाँ कोई बोल सकता है कि ये सब तो जब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सब जब से रिलेटेड है क्योंकि ये सब होने से जब प्रभावित होता है। इट अफेक्ट्स चैंटिंग। अगर कोई वैष्णव का प्रति निंदा कर रहा है, कोई अगर गुरु का अवज्ञा कर रहा है, कोई अगर देवी देवता को भगवान के समान मानता है यानी देवी देवता का उपासना कर रहा है, बहुत लोग करता है, बहुत भक्त लोग करता है क्योंकि फिलोसफी क्लियर नहीं है और बहुत बहुत साल से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक वो सतीत्व नहीं आया। सतीत्व समझते हैं, वो चैस्टिटी नहीं आया भगवान के प्रति। बहुत भक्त लोग करता है, देवी देवता का आराधना करता है, चोरी छुपे पीछे पीछे सब कुछ करता है, हृदय उधर ही पड़ा हुआ है देवी देवता के चरणों में, लेकिन अभी कृष्ण भक्ति में आया, इतना कुछ पढ़ रहा है तो करता है। क्यों? बिकॉज अभी तक वो चैस्टिटी नहीं आया भगवान कृष्ण के प्रति, अभी तक नहीं आया कि दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी के जैसे सरेंडर कर। द्रौपदी भी आंचल पकड़े हुआ था ना, एक हाथ से भगवान को पकड़ रहा था, एक हाथ से बाएं हाथ से आंचल को पकड़ा हुआ था, उसीलिए अपराध से नाम हो रहा था भगवान का। लेकिन उसीलिए भगवान तब तक सारी सप्लाई नहीं किया। कब सारी सप्लाई किया दिलीप प्रभु? जब दोनों हाथ उठाकर दोनों हाथ ऊपर किया और सारी छोड़कर सरेंडर किया। हाँ 18.66 भगवत गीता। अगला श्लोक 31। चैतन्य नित्यानंदे नहीं ये सब विचार, चैतन्य नित्यानंदे नहीं ये सब विचार, नाम लोइते प्रेमोदयन बहु अश्रुधार, नाम लेते प्रेम दैन वही अश्रुधार। हरि बोल। देखिए कृष्ण नाम से इतना कुछ विचार है, आपको दास नाम अपराध रहित जप करने से फिर कृष्ण प्रेम लाभ होगा, इतना क्राइटेरिया कंडीशन है। लेकिन 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 चैतन्य नित्यानंद नाम में ये सब कोई क्राइटेरिया नहीं है। हरि बोल। কিন্তু কেউ যদি একটু শ্রদ্ধা সহকারে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর নাম গ্রহণ করেন, तो क्या क्राइटेरिया है? একটু শ্রদ্ধা সহকারে, বাস উতনাই ক্রাইটেরিয়া है। তাহলে অচিরেই তিনি সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত হবেন। ফলে যখন তিনি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করবেন তখন তিনি ভগবত প্রেম অনুভব করবেন এবং তার চোখ দিয়ে आनंद अश्रु झरे पड़बे। हरि बोल। ठीक है, थोड़ा श्रद्धा से ये पंचतत्व का नाम लेकर फिर महामंत्र जप कीजिए, तब डायरेक्ट उस स्तर पे हम लोग उठ सकते हैं। तात्पर्य এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, কেউ যদি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু শরণাগত হন এবং তাদের নির্দেশ অনুসারে তৃণের থেকেও সুনীচ
এবং তরুণ থেকেও সহিষ্ণু হয়ে ভগবানের নাম কীর্তন করেন, তাহলে অচিরেই তিনি ভগবত প্রেম লাভ করেন এবং তার চোখ দিয়ে আনন্দ অশ্রু ঝরে পড়বে। হরি বল। तो क्राइटेरिया समझ में आया? अभी भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने 2 क्राइटेरिया और ऐड कर दिया, बोलिए। देखिए लिखा गया। क्राइटेरिया तो लग रहा था बहुत इजी है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि हाँ, क्या होना चाहिए? त्रिनादपि सुनिचेन तरुरेव सहिष्णु। प्रभु यही तो नहीं होता है। इससे तो 10 नाम अपराध वाला क्राइटेरिया अच्छा था। हरे कृष्णा। तो वो कंडीशंस अप्लाई लिखा रहता ना छोटा, बड़ा से फ्री फ्री फ्री, छोटा एस्ट्रिक दिया हुआ है। कंडीशन सप्लाई। अब छोटा एस्ट्रिक देखने जाएगा, अरे बाप रे बाप, त्रिनादपि सुनिचेन तरुरेव सहिष्णु। हरे कृष्णा। কৃষ্ণ নাম অপরাধীর বিচার করেন, কৃষ্ণ নাম অপরাধীর বিচার করেন, কিন্তু গৌর নিত্যা নামে অপরাধীর কোনো বিচার নেই। তাই কেউ যদি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন কিন্তু তার কার্যকলাপ যদি পাপ যুক্ত হয়, তাহলে তার পক্ষে ভগবত প্রেম লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি গৌর নিত্যানন্দের নাম কীর্তন করেন, তাহলে তিনি অতি শীঘ্রই অপরাধ থেকে মুক্ত হবেন। ये भी अच्छा गुड न्यूज है ना, অতি শীঘ্রই। অতএব প্রথমে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু শরণাগত হয়ে অথবা শ্রী শ্রী গৌর গৌরাঙ্গের আরাধনা করে তারপর শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের আরাধনা করতে হয়। আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে আমাদের শিষ্যদের প্রথমে শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গের উপাসনা করতে উপদেশ দেওয়া হয় এবং তারপর কিছুটা উন্নত হলে তখন শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তখন তারা শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের আরাধনা করতে শুরু করে। समझ में आ रहे? उसीलिए पहले इस्कॉन में बोला जाता है भक्त लोग को कि आप लोग गौर निताई को ले आइए। वो अपराध नहीं, कुछ कोई कंडीशन नहीं, कोई अपराध नहीं लेगा। गौर निताई को घर में ले आइए, उनका आराधना करिए। जब कुछ साल चला जाएगा, एक स्तर में आ जाएगा, फिर राधा कृष्ण का विग्रह को आराधना करना चाहिए। क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न है? চরমে শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্ম লাভ করার জন্য প্রথমে গৌর নিত্যানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এই সম্পর্কে শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর, হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর, আর কবে নিতাই চাঁদে করুণা হইবে, সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হা মোহে রব শ্রী বৃন্দাবন। বলুন, গৌরনীতা চিনবো কি করে? গৌরনীতা চিনবো কি? হ্যাঁ, গৌরনীতা চিনবো কি করে? হঠাৎ করে আমার সামনে এসে গেল কেউ, আমি চিনবো কি করে? আচ্ছা, হঠাৎ করে সামনে এসে গেলে চিনবে কি করে? হরে কৃষ্ণ, খুব অলৌকিক প্রশ্ন। কারোর উত্তর আছে? ওনার প্রশ্নের উত্তর ইন্দ্রাণী মাতাজি বলুন। যাদের যাদের মাতাজি বলছেন ফটোটা একবার ইসকনের গৌরনীতার ফটোটা ম্যাচিং দেখবেন, চেহারাটা মিলছে কিনা। পঙ্কজ প্রভু একটা উত্তর দিচ্ছেন, দাঁড়ান। হ্যাঁ বলুন প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, যদি সাক্ষাতের সামনে আসবেন তবে দাদামি বুদ্ধি যোগ তো উনি বুদ্ধি দেবেন। আচ্ছা, ভগবান হৃদয় থেকে বলে দেবেন ইনি গৌরনীতায়, ঠিক আছে? হরি হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা দু ভাই এসেছে রে। হরি বলতে নয়ন ঝরে, যার মধ্যে হরি হরি বলতে নয়ন ঝরে। আবার কেউ বলছে, দিলীপ প্রভু বলতে চাইছেন ড্রেসটার কালার দেখে বুঝে দেবেন, ঠিক আছে? একজন ইয়েলো, একজন ব্লু কালার, ঠিক না? ওটা দিকে বলে দেবেন, ঠিক আছে? সবাই দেবেন, কত আইডিয়া দিয়ে দিয়েছি সবাই, কি করে বুঝতে পারবেন। আর একটু বাকি আছে, পড়ে নি। তার টাইম আছে তো নাকি? রবিবার,
সবাই সারাদিন ঘুমাবো আজকে, ঠিক আছে, তাহলে টাইম আছে। কাহুর কুইজ হবে কি হবে না? সুধাময়ী বল্লভী মাতাজি, हाँ प्रभु जी। ভেরি নাইস। কুইজ পিন দিয়ে দিজে। প্রথমে অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে শ্রী গৌর সুন্দরের নাম এবং শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর নাম গ্রহণ করতে হবে। তার ফলে বিষয় বাসনা মুক্ত হয়ে হৃদয় নির্মল হবে। তখন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার জন্য বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করা যাবে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ না করলে বৃন্দাবনে গিয়ে কোনো লাভ নেই। হরি বল। হৃদয় নির্মল না হলে বৃন্দাবনে গেলেও বৃন্দাবন দর্শন করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবন যাওয়ার মানে হচ্ছে স্বরূপ গোস্বামী রচিত ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব আদি গ্রন্থগুলি পাঠ করে তাদের শরণাগত হওয়া। হরি বল, হরি বল। বাহ, क्या हरि लिखा प्रभुपाद जी, माय गुडनेस, माइंड ब्लोइंग। এভাবেই শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের যুগল প্রেম হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কবে হাম বুঝবো সেই যুগল প্রীতি। রাধা কৃষ্ণের প্রেম কোনো সাধারণ মানুষের কার্যকলাপ নয়, তা পূর্ণ চিন্ময়। শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হলে, তাদের আরাধনা করতে হলে এবং তাদের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে হলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বর গোস্বামীদের শরণাগত হতে হবে। হরি বল। টু গুড। সাধারণ মানুষের পক্ষে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু অথবা পঞ্চতত্ত্বের আরাধনা করা শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের আরাধনা থেকে সহজ। অত্যন্ত সৌভাগ্যবান না হলে সরাসরি শ্রী রাধা কৃষ্ণের আরাধনা করা যায় না। क्लियर? सरज माता जी समझ में आ रहा है? प्रभु जी समझ में आ रहा है। नए भक्त को राधा कृष्ण की सेवा नहीं करके पहले पंचतत्व की करनी चाहिए। যে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত যথেষ্ট ভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেননি, তার পক্ষে শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের আরাধনা করা অথবা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত নয়। তিনি যদিও তা করেন, তাহলে ঈপ্সিত ফল লাভ হবে না। তাই নিতাই গৌরের নাম করতে হয় এবং অহংকার শূন্য হয়ে তাদের আরাধনা করতে হয়। যেহেতু এই জড়জগতে প্রায় সকলেই কম বেশি পাপ কর্মের দ্বারা প্রভাবিত, তাই প্রথমে শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গের ভজনা করে তাদের কৃপা প্রার্থনা করা অবশ্যই প্রয়োজন। কেননা তাহলে এই সমস্ত অক্ষমতা সত্ত্বেও অচিরেই শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের আরাধনা করা যোগ্যতা লাভ হবে। এই সম্পর্কে মনে রাখা উচিত যে কৃষ্ণ নাম ও গৌর সুন্দরের নাম অভিন্ন, তাই একটি নামকে আরো একটি নাম থেকে শক্তিশালী বলে মনে করা উচিত নয়। তবে এই যুগের মানুষদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম কীর্তন করা। হ্যাঁ, বলি মাতাজি। प्रभु जी यहाँ गुरु गौरांग जो आ रहा है तो गुरु क्या वो निताई निताई प्रभु গুরুদেব আর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভজনা করে। গুরুদেব প্রবচন करने ছিল ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु के शरणागत होकर, गौरांगेर माने गौरांग महाप्रभु की शरणागत होकर। প্রভুজি আদি গুরু তো বলরাম। আমাদের যেমন দীক্ষা হয়নি, তাহলে আমাদের তো গুরু মানতে হবে কাউকে। হ্যাঁ, তো দীক্ষা হয়নি তো আমাদের 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 দীক্ষা পরম্পরা না মাতাজি। আমাদের পরম্পরা কিন্তু শিক্ষাগুরুর পরম্পরা। ওকে, এটা মনে রাখবেন। আমাদের গৌরীয় বৈষ্ণব পরম্পরা কিন্তু শিক্ষাগুরুর পরম্পরা। ওকে, হ্যাঁ, তো গুরু মানে যিনি আমাদের কৃষ্ণ তত্ত্ব দিচ্ছেন সেই গুরু হয়। এই সম্পর্কে মনে রাখতে উচিত হবে যে কৃষ্ণ নাম ও গৌর সুন্দরের নাম অভিন্ন, তাই একটি নামকে আরো একটি নাম থেকে শক্তিশালী বলে মনে করা উচিত নয়। তবে এই যুগের মানুষের অবস্থার কথা বিবেচনা করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম কীর্তন করা হবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার থেকে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है गुरु गौरांग की पूजा करें, उनकी कृपा याचना करके, मतलब यही बताया जा रहा है ना कि शुरुआत में मंगला आरती से स्टार्ट जो होता है, यही बोला जा रहा है कि अगर कोई गुरु का शरणागत होना इजी है,
गौरांगों का शरणागत होना इजी है, राधा कृष्ण का शरणागत होना क्राइटेरिया युक्त है। भगवान राधा कृष्ण का शरणागत होने के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य होना चाहिए, लेकिन गुरुदेव और गौरांगों का शरणागत होने के लिए सब कोई क्राइटेरिया नहीं है। गुरु कैन एक्सेप्ट एनीबडी, जस्ट लाइक गौरांग महाप्रभु कैन एक्सेप्ट एनीबडी। कोई क्राइटेरिया कुछ नहीं है, ये बोला जा रहा है। हाँ, ये तो समझ गए, लेकिन लास्ट लाइन में लिखा ना कि वह राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करने का पात्र बन जाता है। हाँ, मतलब शुरुआत में ये स्टेप को फॉलो करते हुए फिर विग्रह हाँ, फिर राधा कृष्ण विग्रह का आराधना करने का उनको योग्यता मिल जाता है। करेक्ट। सब लॉगिन करिए काउंट में। तो अब একটা কথা বলি ভাই, অনেকেই তো এই চিন্তা গৌর নিতাই না কিনে তো ফার্স্টেই রাধা কৃষ্ণেরই মূর্তি কিনে ঘরে ফিরে। ভুল ভুল ভুল। দেখুন এখানে লেখা আছে, একটা লাইনও আছে, আপনি এই প্যারাগ্রাফে সাধারণ মানুষের পক্ষে পেয়েছেন এই প্যারাগ্রাফটা স্টার্টিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, এর দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা পড়ুন, অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। পড়ুন আনমিউট করে। কোন প্যারাটা স্টার্টিংটা বলুন? সাধারণ মানুষের পক্ষে। হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের পক্ষে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু অথবা পঞ্চতত্ত্বের আরাধনা করা শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের আরাধনা থেকে সহজ। এবার পড়ুন, এবার খুব ইম্পর্টেন্ট। অত্যন্ত সৌভাগ্যবান না হলে সরাসরি শ্রী রাধা কৃষ্ণের আরাধনা করা যায় না। হরে কৃষ্ণ, বাস। हरि ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে আমার প্রশ্ন, আপনার প্রশ্নের উত্তর। তো হতে পারে আপনি ঠিক বলেছেন, করা উচিত নয়, কিন্তু হয়তো অত্যন্ত কি সৌভাগ্যবান, সে ডাইরেক্ট রাধা কৃষ্ণের আরাধনা দিয়ে শুরু করেছে। যে আমরা তো জানতামই না, আমরা যা আগে জানতাম হয়তো রাধা কৃষ্ণেরই পুজো হচ্ছে, সেটাই করতাম। আমরা তো নিতাই বশত হয়তো করেছে, কিন্তু করা উচিত নয় সেটাও তো না। এখন অজ্ঞানত বশত করেছে, কিন্তু লোককে তো এটাই প্রচার করা উচিত, করা উচিত নয়। আমরা ভুল করেছি তাই বলে কি লোককে ভুল করা না, এটা এর মাধ্যমে তো জানতে পারছি, পড়ছি। লোককে সচেতন করে দেবো। एक बात बताइए, दूसरे का गलती से सीखना आसान है या अपना गलती से सीखना चाहिए? নিজের নিজের अपना गलती से। ऑब्वियसली दूसरे का गलती से सीखना आसान है। वाह, इतना आप लोग का क्या दिमाग नहीं है क्या? নিজের हाँ, खुद गड्ढे पे गिर के सीखना चाहते हैं आप लोग। कोई अगर बोल रहा है भाई यहाँ गड्ढा है, बोले नहीं नहीं नहीं, हम पहले गिरेंगे फिर सीखेंगे। वाह, बहुत अच्छा उत्तर दिया आप लोग ने। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस तो यही बोलता है कि दूसरा गलती किया है उसको, वो बोल रहा है भाई मत करो। प्रभुपाद जी सबको सतर्क कर रहा है कि नहीं, पहले राधा कृष्ण का विग्रह का आराधना मत करिए, पहले इट इज इजी टू सरेंडर टू गौरांग, गुरु गौरांग को, है ना। तो जैसे बोल रहे वैसे सीखिए, वैसे करिए। প্রভুজি আমাদের যত জ্ঞান আছে, 90% ঠকে জ্ঞান শিখেছি, 90% ঠকে জ্ঞান হয়েছে যত জ্ঞান আছে, এটা আমার আইডিয়া। একদম ঠিক বলেছেন, ঠকে, কিন্তু বুদ্ধিমানের পরিচয় কি? লোকের থেকে, লোকের ভুল থেকে শেখা। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कहते सामने वाला चोरी किया, उसको पिटाई हुआ है, हम देख लिए, तो हमको भी फिर चोरी नहीं करना, उदाहरण में आता है तो हम लोगों के ये। हाँ, एकदम उपदेशामृतम। ओके, थोड़ा बाकी है। কেননা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সবচাইতে উদার অবতার এবং তার করুণা অতি সহজেই লাভ করা যায়। তাই প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ কীর্তন করার মাধ্যমে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শরণাগত হতে হবে। শ্রী গৌর নিত্যানন্দের সেবা করার ফলে বিষয় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের আরাধনা করার যোগ্যতা লাভ হয়। হয় এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে বলো হরি হরি। स्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।